Hello students, today we'll discuss about classification of goods. Two important types of classification we'll take up here. Final goods and intermediate goods. Consumer goods and capital goods. Though we'll discuss only these two types, it doesn't mean that we don't have any more classification. We have public goods, private goods, rival goods, non-rival goods, excludable goods, non-excludable goods, and many more. But to understand national income concept, we need to know about these two types. And that's the reason why we are taking up only these two. सामान का जो श्रेणी विभाजन है, हम सिर्फ यहाँ पे दो तरह की श्रेणी विभाजन देखेंगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हालांकि और भी बहुत सारे श्रेणी विभाजन हैं गुड्स के, लेकिन नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, जितने सारे भी कंसेप्ट है, उनको समझने के लिए हमें ये दो क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है। मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। काफ़ी सारे इकोनॉमिक लिटरेचर में आप पढ़ेंगे नॉन मटेरियल गुड्स, सर्विसेज को ही कहा जाता है। उस तरह से देखें तो सर्विसेज भी गुड्स ही है। इन इकोनॉमिक लिटरेचर वी गेट अबाउट नॉन फिजिकल गुड्स which are services. So from that point of view, services are also part of goods. But still, in most of the economic literature, you will get goods and services. For example, GST, goods and services tax. It could have been goods tax if services are part of the goods. Though we call services as non-physical goods, but still we call them services in most of our economic conversation. So you have to remember that. Let me tell you one thing here. If we look at national income accounting and the sectors that we have in national income accounting, like primary sector, secondary sector and tertiary sector, the first two sectors are goods related sector, primary and secondary. And the third one is service related. One important point that comes to my mind here, we don't have too many theories talking about service related behavior. Why? During Adam Smith, Professor Alfred Marshall, John Maynard Keynes, during that period, economy was guided by the production sector only. No one could imagine during that era that there will be a time when in an economy, services will become as important as the goods. Economics as a discipline आगे बढ़ रहा था और एडम स्मिथ, मार्शल, ये लोग जब थ्योरीज और ढेर सारे कंसेप्ट्स लिख रहे थे, उस समय गुड्स का ही ज़माना था। इकोनॉमी में गुड्स के बारे में ही सोचा जाता था, सर्विसेज का इतना महत्व नहीं था। लेकिन आज अगर हम इंडियन इकोनॉमी में देखें तो अराउंड 55% ऑफ द नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़, टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है। तो आज के काफ़ी सारे इकोनॉमी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली, जहां टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट करती है नेशनल इनकम में। अगर एडम स्मिथ, मार्शल, पीगो और उसके बाद के इकोनॉमिक्स की बात कहें तो उस समय में गुड्स डोमिनेट करता था इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक की पढ़ाई करके, एनालिसिस करके, अध्ययन करके उन्होंने लिखा। बिकॉज रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च अगर नहीं है
if it's not historical research, then generally social science research talks about contemporary issues. So 21st century research will talk about the ground realities happening in the economy. तो ये बात हमें समझना जरूरी है. When we say goods, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल गुड्स. सर्विसेज बाहर है. ये क्लासिफिकेशन जो हम देख रहे हैं, ये जो टिपिकल मीनिंग में जो बोलते हैं गुड्स, उसी को लेकर किया गया है. सो विल नाउ लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स आर द गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एंड producers. So the final goods like tea, coffee, pen, etc. These are the examples, right? These goods satisfy human wants. Okay, these satisfy human needs. Why we call even pen, pencil, TV, etc. as consumer goods? Because we know in economics, when we say consumption, it talks about the process of getting satisfaction. So it's not absolutely necessary to consume everything by mouth to get satisfaction. Tea and coffee, fine, we use our mouth to get satisfaction. But pen, pencil, we are writing, getting satisfaction. It is satisfying our want, need. When we watch TV, it gives us satisfaction. It fulfills our need. So they are also consumer goods. तो हमें समझना है जो कंज्यूमर गुड्स है, पेन, पेंसिल, टी, बिस्किट वगैरह, ये कंज्यूमर्स ही यूज़ करेंगे. और कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे किसके लिए? अपने जो अभाव है, जो अपने प्रयोजन है, जो नीड है, उसको पूरा करने के लिए. तो हम क्या बोलते हैं कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो कंज्यूमर यूज़ करते हैं, और जो एक्सपेंडिचर होगा कंज्यूमर गुड्स पर, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. राइट? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट the consumption expenditure will be incurred by consumers. थोड़ा सा अगर और आगे जाके देखें तो इकोनॉमी में हम, मैक्रो इकोनॉमी में हम सेक्टर्स को इस तरह से भी भाग करते हैं: हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. ये 4 सेक्टर का इकोनॉमी है. उसी तरह से जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, public sector, private sector, organized sector, unorganized sector. It depends on what's the subject, what is the topic of study. Accordingly, we will use the classification of different sectors. So यहाँ मैक्रो इकोनॉमी में नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो एक जो सेक्टर का क्लासिफिकेशन है वो ये है हाउस होल्ड्स, जिसमें इंडिविजुअल्स वगैरह रहते हैं. राइट? हम परिवार बोल सकते हैं. फर्म्स जो प्रोड्यूसर्स भी है, गवर्नमेंट है, सरकार है. एक्सटर्नल सेक्टर जो देश के बाहर का जो इकोनॉमी है, जिसके साथ हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का रिलेशन रहता है, आयात निर्यात का जो संपर्क रहता है, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर है. लेकिन जो सिंपल मॉडल हम फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें हम 2 सेक्टर ही लेके चलते हैं. जॉन मेनर्ड किन्स का जो उन्होंने जनरल थ्योरी में उन्होंने लिखा है, वो हाउस होल्ड और फर्म्स को लेकर ज़्यादा है. तो अभी हम 2 सेक्टर को लेके चलेंगे. तो ये जो हाउस होल्ड्स है, ये कंज्यूमर्स इसमें बिलोंग करते हैं. राइट? द कंज्यूमर्स बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर. सो दैट्स अनदर direction that you can look at to understand these various concepts. Whereas the producers, they are from this particular sector. So households generate consumption expenditure, whereas firms generate or producers generate investment expenditure.
इन्वेस्टमेंट जब हम बोलते हैं तो हमें समझना पड़ेगा वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल को इकोनॉमिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वन वे ऑफ डिफाइनिंग कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है उसको फिर प्रोडक्शन के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल है। एक फर्म अगर बिल्डिंग बना रहा है फैक्ट्री बनाने के लिए तो वो बिल्डिंग कैपिटल हो गया। सो बिल्डिंग तो बन चुकी है लेकिन अब किस में काम आएगा? प्रोडक्शन के लिए, तो कैपिटल हो गई। सो दीज एग्जाम्पल्स बिल्डिंग मशीनरी एट्सेट्रा दे आर कैपिटल एसेट्स। सो इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस कैपिटल एसेट्स। और अगर प्रोडक्शन की बात बोल रहे हैं तो फर्म्स ही करेगा वो प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट, राइट? बिल्डिंग मशीनरी वगैरह हाउस होल्ड को तो चाहिए नहीं, फर्म्स को ही ज़रूरत है क्योंकि फर्म्स बिजनेस में है, प्रोडक्शन बिजनेस में है। सो दे विल बिल्ड द बिल्डिंग, दे विल बाय द मशीनरी, इंस्टॉल दैम, कीप द प्लांट और गेट द प्लांट रेडी एंड प्रोड्यूस द गुड फॉर प्रॉफिट। जैसा कि हम समझे जब कैपिटल एसेट्स तैयार होगा इकोनॉमी में तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि वो प्लांट जो मैं बता रहा हूँ, बिल्डिंग एक प्लॉट ऑफ लैंड में है, बिल्डिंग मशीनरी के साथ, सो प्रोडक्शन बढ़ाएगा वो। इस तरह के और 10 प्लांट्स अगर बन गए तो हमारे देश की जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगी। मशीनरी अगर हम अच्छे लगा रहे हैं तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि नए टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ओके, सो फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हम बोलेंगे, बिकॉज फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और फाइनल गुड्स 2 तरह का होता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो हम फाइनल एक्सपेंडिचर को इट्स अ समीशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई फ़र्क नहीं है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट्स पे हो रहा है तो वो हम समझ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर आपको और एक बात समझनी जरूरी है। वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री, जब तक एक गुड इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं निकलता तब तक वो फाइनल गुड्स कहा नहीं जाएगा। टिल ए कमोडिटी और गुड comes out of the production boundary, it is not considered as a final good. I'm giving this example. Wheat is the raw material. Then it goes to the flour mill. Now, if this one comes out to a particular household, then the flour becomes final good. But the same flour, if goes to bakery for making bread, then of course it will become intermediate goods. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन होगा। अगर व्हीट का दाम अगर 20 था, ये अगर फ्लोर मिल में गया और इसमें दाम अगर जितने भी क्वांटिटी है उसको 30 में बेचा जा रहा है मिल के द्वारा, तो मिल ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 10 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। इसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं, राइट। पहले जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो आप समझ सकते उस वक्त, अभी तो जीएसटी आ गया तो इस पर टैक्स लगता था। उसके पहले देखें तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, जब इस दाम में अगर टैक्स लगाया जाए, इसमें टैक्स लगाया जाए तो डबल टैक्सेशन का झमेला आता था। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए वैट लाया गया था सेल्स टैक्स के फील्ड में। देन इट गोज़ टू ब्रेड, इट गोज़ टू बेकरी फॉर मेकिंग bread, and the bakery sells the bread at ₹50.
So this bakery has added a value of rupees 20, provided there is nothing else to be used there. असलियत में तो ऐसा नहीं होगा, काफ़ी सारे और भी सामान लगेंगे तो उनको सारे को ऐड करके उसके बाद जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके बारे में हम बोलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल इस सिंपल में एक ही सामान के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू एडिशन हुआ। अगर ब्रेड निकल गया बेकरी से कंज्यूमर के पास तो ब्रेड बिकम्स फाइनल गुड, सो इट विल बिकम कंज्यूमर गुड, राइट, इट रीचेस कंज्यूमर। और ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये तो कैपिटल गुड हो ही नहीं सकता, राइट। कैपिटल गुड्स की तो लॉन्जिविटी रहती है, इट हैज़ लॉन्जिविटी 4, 5, 10 ईयर्स, तो ये तो कंज्यूमर गुड है, राइट। कैपिटल गुड्स बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, लाइफ जो पीरियड है उसके लाइफ साइकिल जो है काफ़ी लंबी होती है। ब्रेड अगर कंज्यूमर के पास गया तो फाइनल गुड हुआ। अगर वही ब्रेड रेस्टोरेंट में चला गया सैंडविच के लिए तो दैट ब्रेड बिकम्स इंटरमीडिएट गुड, right? Now the restaurant prepares sandwich. इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। So the restaurant sells it ₹80. So what is the value addition? 30. अगर हम वैल्यू को ऐड करें यहाँ पे 0 से अगर पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं 20, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे फिर 20 और यहाँ पे 30। सो अगर हम ऐड करते हैं तो 80। सो वैल्यू एडिशन में भी हमें 80 मिल रहा है और फाइनल गुड्स में भी अगर हम सिर्फ फाइनल गुड्स का अगर प्राइस ले लेते हैं तो भी हमें 80 मिल रहा है। तो मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हम बाद में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। और आप देख सकते हैं आप फाइनल गुड्स का वैल्यू ले लीजिए या वैल्यू एडिशन कीजिए, आपको एक ही फिगर मिलेगा। सो इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं और प्रोडक्ट मेथड में हम वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स उसको लेते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं तो हमें वही फिगर मिलेगा। एंड वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू लुक एट द डिफरेंसेस, द फाइनल गुड doesn't have any scope of further value addition, whereas in case of intermediate good there is still another stage or more than one stage of value addition. Intermediate goods are those goods which are either used as raw materials or used for resale. Intermediate goods वो सामान है जो पुनः उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल्स के हिसाब से प्रयोग में आएगा या उस सामान को फिर बेचा जाएगा। ये दो क्राइटेरिया है। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये इंटरमीडिएट गुड है, ये फाइनल गुड नहीं है। एज लॉन्ग एज द कमोडिटी इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल it will be considered as an intermediate good. Likewise, if the commodity is purchased for resale, then it is again considered as an intermediate good. अगर पुनः बिक्री के लिए कोई सामान लाया गया है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। कपड़े की दुकान में कपड़ा रखा गया है, इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि बिक्री के लिए रखा गया है। एक कार शोरूम में है, इंटरमीडिएट गुड है। फैक्ट्री से तो कार निकल चुकी है लेकिन अभी भी कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स के हाथ में पहुंची नहीं है, हाउस होल्ड्स या फर्म्स के पास पहुंची नहीं है, तो अभी शोरूम में है। और शोरूम से जब वो कार निकलेगी, कंपनी से जिस वैल्यू से लाया गया है उसमें बढ़ोतरी होगी, वैल्यू एडिशन होगी। तो उस कार को जब शोरूम में है, जब तक बिक्री नहीं होता, उस कार को हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। एज लॉन्ग एज द कार इज इन द शोरूम इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज द कार हैजंट रीच द एंड यूजर, आइदर कंज्यूमर्स और द प्रोड्यूसर। इफ द गुड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल और is used for resale, we have to remember we'll consider it as an intermediate good. This also means that the good is still in the production boundary. Production boundary के अंदर ही है।
क्योंकि जैसे ही निकलेगी वो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगी। एंड अनदर पॉइंट आई टच देयर दैट वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस। इंटरमीडिएट गुड, जब तक इंटरमीडिएट गुड है वैल्यू एडिशन होता रहेगा। उसमें हम बोलते हैं कि वैल्यू इच स्टेज में बढ़ता जाएगा, उसी को हम एडिशन बोल रहे हैं, वैल्यू का बढ़ना। सो दिस इज अनदर पॉइंट। ओके, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज द एंड यूज। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है whether the commodity is an intermediate commodity or final commodity, you look at the end use. If it is used by consumer or producer for consumption purpose or investment purpose, then it's a final good. But the same commodity, if it is used for resale or used as a raw material, then it will be called an intermediate good, right? Intermediate good. So वही ब्रेड जब कंज्यूमर के पास पहुंचती है तो वो फाइनल गुड है, वही ब्रेड जब होटल या रेस्टोरेंट वाले के पास पहुंचती है तो इंटरमीडिएट गुड है। लेट्स नाउ लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन the final goods and intermediate goods. I have already touched the points, but let's look at systematically the differences. Having understood the meaning of final goods and intermediate goods, now we can look at the differences between the two point-wise. Final goods come out of the production boundary. मैंने जैसे कहा था, ब्रेड अगर कंज्यूमर के हाथ आ गया तो वो फाइनल गुड है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया। वही अगर रेस्टोरेंट में जा रहा है सैंडविच के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है, सो रिमेन्स इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। उसके बाद वैल्यू एडिशन, अगर वो बाहर आके कंज्यूमर या फर्म के पास पहुंच ही गया कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें वैल्यू एडिशन तो होने से रहा। हम बोलेंगे कि फाइनल गुड्स में द स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन डजंट एग्जिस्ट, और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि एंड यूजर के पास पहुंच चुका है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वैल्यू एडिशन होगा, नेक्स्ट स्टेज में वो ज़्यादा दाम में बिकेगी सामान। में ये समझना होगा कि वैल्यू एडिशन हुआ है। अगर फिर और एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में गई है वो सामान तो फिर वैल्यू एडिशन होगा। सो इंटरमीडिएट गुड्स में हम बोलते हैं कि स्टिल देयर इज स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन। देन द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर or intermediate cost, same thing. The cost is nothing but the expenditure. Definition जो है, final goods are used for consumption or investment. Intermediate goods are used as raw material or as a commodity bought for resale. पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया है। नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है, CSO कैलकुलेट इंडिया में करती है, दूसरे देश में अलग अलग एजेंसियां हैं, तो उनके पास एक्सपर्टीज़ है, मेथोडोलॉजी है, डेटा सोर्स है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। एंड वो हमेशा फाइनल गुड्स का ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू लेंगे तो डबल काउंटिंग मल्टीपल काउंटिंग हो जाएगा। जो एग्जांपल मैंने दिखाया था, व्हीट फ्लोर बेकरी टू सैंडविच, अगर 20, 30, 50, 100 रुपया हो गया और 80, 180, अगर उस तरह से हम ऐड करते आए हैं, सबका अगर वैल्यू लेते जाएं तो उसका वैल्यू 180 हो गया, जबकि असल में क्या वैल्यू क्रिएट किया उस प्रोडक्शन लाइन में, 80 रुपीज़ का। फाइनल गुड्स का जो वैल्यू था 80 रुपीज़ था, सैंडविच का दाम था 80 रुपीज़, या वैल्यू एडिशन करते हुए जब आए तब हमें मिला 80 रुपीज़। सो एक्चुअल जो क्रिएशन ऑफ वैल्यू क्या है, 80 रुपया है। लेकिन वही नहीं करके अगर हम हर स्टेज का वैल्यू लेते हैं तो 180 होगा, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, अगर याद मुझे सही से आ रहा है तो 180, तो इन्फ्लेट हो गया हमारा नेशनल इनकम। ये तो सिर्फ एक कमोडिटी का, एक किसी फैक्ट्री सेटिंग का बात बोल रहा हूँ। हज़ारों बेकरीज़ है, हज़ारों रेस्टोरेंट्स होटल्स है जो सैंडविच बनाती है, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा और इसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीडियर ऑफ कैलकुलेटिंग
नेशनल इनकम, लेकिन मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 80 के जगह हम 180 मिल रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम नहीं ले सकते, और वही काम CSO इन इंडिया में करती है. CSO doesn't include the value of intermediate goods in the calculation of national income because it will lead to double counting or multiple counting. Last one example. The difference between the two depends on the end use, even though the commodity is the same. Car here, the car bought by a household is a consumer good, is for the final use. When the dealer buys it, it is buying it for resale. The dealer is not buying it as a raw material. So this condition is not valid for dealer. Dealer is buying for resale. So the same car bought by a dealer is considered as an intermediate good. I hope I could convey you the meaning of final goods and intermediate goods and the differences between the two. मेरा जो मकसद है आपको समझाना है, आपको कंसेप्ट्स देना है, आपको अंडरस्टैंडिंग देना है. अगर आप बोलते हैं मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, 95 आउट ऑफ 100 चाहिए, 90 आउट ऑफ 100 चाहिए, सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है. आपके एग्ज़ाम में कंसेप्ट बेस अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक नॉलेज बेस जो है क्वेश्चंस, थोड़े उसमें अगर आप एग्ज़ाम में देखते हैं तो नॉलेज बेस है. हेल्प the goods used by firms which help in future production like building machinery etc. What are producer goods then? Producer goods. So इस वर्ड को अगर आप याद रखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूरी हो जाएगी. So these goods are used by producer. So आप अगर प्रोड्यूसर है तो आपके पास लैंड बिल्डिंग मशीनरी तो होगी, प्लांट तो होगी, लेकिन आपको रॉ मटेरियल्स भी लगेगा और शायद प्रोडक्शन के प्रोसेस में इंटरमीडिएट गुड्स भी है. एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो रबड़ वगैरह, रबड़ है. एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो रबड़ है, आयरन है. अगर हम रॉ मटेरियल्स पकड़ लेते हैं, टायर है, इंटरमीडिएट गुड पकड़ लेते हैं, और जैसे कि मैंने कहा लैंड बिल्डिंग मशीनरी है, सो वो कैपिटल गुड्स है. तो प्रोड्यूसर गुड्स की मीनिंग समझने के लिए हमें इस वर्ड पर ध्यान देना है, प्रोड्यूसर गुड्स. सो गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स. सो ए प्रोड्यूसर विल यूज building machinery which are capital goods and also raw materials and intermediate goods for producing the commodity. If we talk about a car industry, then the firm operating in the industry will have plant, land building machinery there and also use raw materials, intermediate goods for producing the car. So a producer uses raw materials, intermediate goods as well as the capital goods. So capital goods are part of the producer goods. So we can say capital goods are always producer goods. But we can say the second line, producer goods, all producer goods are not capital goods because producer goods also have raw materials and intermediate goods. So these goods are not capital goods. जैसे अगर क्लासरूम में सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, if we have only students in the classroom, if we only have students in the classroom, both boys and girls, then we can say that all girls in the classroom are students. But we can't say all students in the classroom are girls.
क्योंकि क्लासरूम में लड़के भी हैं। तो क्लासरूम की हर लड़कियां स्टूडेंट्स हैं ये तो बोल सकते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारी लड़कियां हैं ये हम नहीं बोल सकते। यही बात यहाँ पे हो रही है। इस बात को ध्यान रखिए। प्रोड्यूसर गुड्स आप याद रखिए, प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचिए तो रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स यूज़ करेगा। तो कैपिटल गुड्स जितने भी हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज़ करेगा प्रोडक्शन में। I would like to conclude my lecture by saying this: concepts are key for long-term success. Even if you look at short-term success of securing good marks in the forthcoming exam, you can never cross 80-85 without having the understanding of the concepts. अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप हैंडल कर लोगी। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? 1947। नो नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये फैक्ट है, तो आप लिख जाएंगे। लेकिन जैसे ही हायर लेवल का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नॉलेज को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, इवालुएट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Now I have explained this one, or teachers in the classroom explain, so you can handle that question. But imagine something of that sort comes in the exam, be it board exam, university exam or competitive exam, which you haven't heard before. You can do nothing if you don't have the concepts. So it's very, very fundamental. Even if you want to score well, there will be 15-20 marks questions in the exam which test your analysis and ability to apply the knowledge acquired through the analysis. So my advice, please build your concepts
And without knowing the concepts, economics will always remain at the periphery of your interest. You will take economics along the way because there is no choice. You have opted for the subject, but you will never enjoy it. You will enjoy it only if you know the concepts. Take my words. Now we'll see the difference between consumption goods and capital goods. Consumption goods are also called consumer goods. Capital goods are also called investment goods. Now both these goods are final goods. Both these are final goods. While talking about final goods and intermediate goods, I said final goods are those goods which are either used by consumers or producers. So when consumers or households use them, they become consumer goods. When producers and firms use them, they become capital goods. So both consumer goods and capital goods are final goods. Now consumer goods, when consumers buy them, it's for satisfaction of particular wants. So consumer goods satisfy human wants directly. कंज्यूमर्स जब कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं तो अपनी जो नीड है, अभाव है, उसको पूरा करने के लिए खरीदते हैं. सो डायरेक्टली जो अभाव है उसको पूरा करेगा. वो टीवी हो, कार हो, पेन हो, पेंसिल हो, चाय हो, जो भी हो. सो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट. और जैसे कि मैंने कहा, कंज्यूमर गुड्स हाउस होल्ड्स द्वारा खरीदी जाती है. और ये दोनों कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स है. जब हाउस होल्ड्स के पास पहुंचती है तो उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और वही फाइनल गुड्स जब इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, फर्म्स के पास पहुंचती है तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. और कंज्यूमर गुड्स को अगर हम देखें और आगे जाकर तो इसको हम 4 भाग में भाग कर सकते हैं. We can divide the consumer goods into 4 types. Number 1, durable consumer goods. ड्यूरेबल मतलब जो लंबा चलता है. सो कंज्यूमर गुड्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कार है, बाइक है, टीवी है. इनकी लॉन्जिविटी काफ़ी लंबी होती है. 5 साल 10 साल तक एक टीवी चल सकती है, कार 10-15 साल तक चल सकती है. तो लॉन्जिविटी काफ़ी होती है. सो जिन सामान का लॉन्जिविटी लंबा है, 1 साल से ज़्यादा है, तो हम उसे ड्यूरेबल कहेंगे, राइट. सो दिस गुड्स हैव कंजम्पशन पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, 2, 3, 4, 5, 10 years depending on the commodities. And as I have said, car, TV, bike, etc. are the examples of durable consumer goods. Then we have semi-durable. 1 साल के आसपास, roughly we say like that, right? Consumption period is for around 1 year. Shoes, crockery items, these are the examples of semi-durable consumer goods. जो जूते हैं, मिट्टी के कप, प्लेट वगैरह हैं, तो 1 साल अगर यूज़ करते रहते हैं तो 1 साल के आसपास का उनका लाइफ पीरियड रहता है, तो उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल कहेंगे. उसके बाद नॉन ड्यूरेबल और पेरिशेबल कमोडिटीज़ और गुड्स, दे आर फिनिश्ड इन 1 act ऑफ कंजम्पशन. रिपीटेड यूज़ नहीं हो सकता. ड्यूरेबल गुड्स में रिपीटेड यूज़ होता है, सेमी ड्यूरेबल में भी होता है, लेकिन पेरिशेबल या नॉन ड्यूरेबल में रिपीटेड यूज़ नहीं होता. 1 कप चाय
हमने अगर पी ली तो उसे हम फिर नहीं पी सकते. Then there is another category called non-material goods. Non-material goods are in non-physical forms which cannot be seen or touched but still satisfy human wants, and there is economic implication that consumers have to pay prices for these services, be it the service of a doctor, engineer, teacher, or services provided by hotels, restaurants, tourism industry, etc. So what we have understood, the consumer goods satisfy human wants and they are of varied types. Some consumer goods have longer duration of consumption called durable consumer goods or semi-durable consumer goods. Some consumer goods are consumed in one act of consumption like tea, coffee, biscuit, etc. They are called perishable or non-durable consumer goods. And services are considered as non-material, non-physical goods which also satisfy human wants. If we go to capital goods, then they satisfy human wants indirectly. क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है वो फिर प्रोडक्शन में यूज़ होगा और उसके बाद कुछ सामान तैयार होगा जो कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा और कंज्यूमर्स उसे कंजम्पशन के द्वारा अपने जो अभाव है उसे पूरा करेगा. सो इनडायरेक्टली कैपिटल गुड्स हमें हेल्प कर रहा है. सो कैपिटल गुड्स दे हेल्प इन फ्यूचर प्रोडक्शन एंड capital goods are buildings, machinery which are already produced but again help in future production. Capital goods thereby satisfy human wants indirectly as they help in future production, and through their help in future production consumers, households, they get the goods that they desire. When we look at the capital goods, again we look from these two perspectives. Capital goods which can be used for replacement of existing capital goods, okay, and capital goods that add to the existing capital stock. काफ़ी सारे कैपिटल गुड्स हैं, मशीन्स वगैरह, जो जैसे वो पुराने होते जाते हैं तो उनमें बदलाव की ज़रूरत होगी. अगर वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है एक मशीन तो उसे चेंज करना ज़रूरी है. तो जब हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स, जब फर्म पैसा लगा रहा है एक मशीन खरीदने में, तो एक पार्ट ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जो मशीनरी वगैरह है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं. और दूसरा है जो नया एडिशन हो रहा है, वही कंपनी और एक प्लांट बना रही है, नई प्लांट एक बना रही है, तो ये एडिशन हो गई क्योंकि वो प्लांट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, अब नया बन रहा है तो एडिशन हो रहा है. और जबकि पहले वाला मैं बोल रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें मशीनरी पुराने हो चुके हैं या ब्रेक डाउन हो चुका है, तो बदलाव, उसको चेंज करना, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है. So when a firm invests in capital goods, one part can be in the replacement of the existing capital goods, another part can be in the creation of new capital goods that add to the existing capital stock of the economy. और capital goods मैंने बताया जब इन्वेस्टमेंट किस में होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसको हम प्लांट बोलते हैं. तो एक प्लांट जब बन के तैयार होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब बढ़ेगा, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. इसका मतलब है जीडीपी हमारी बढ़ेगी. सो उस तरह का सिचुएशन में हम बोलते हैं इकोनॉमी तरक्की कर रही है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है. So when productive capacity or production in the economy increases, it also adds additional income
adds additional employment in the economy. Thereby, we can say that the GDP or national income of the country is growing. So investment goods are very, very important because they help in expanding the productive capacity of the economy. Another point that I would like to raise here again, which I talked earlier, is that the same good can be consumer good in one instance and capital good in another instance. Like I said, the same good can be final good in one instance and intermediate good in another instance. Car purchased by a household is a final good. Car purchased by a dealer is an intermediate good. Same way, a car, again the same example I am taking, if the car is bought by a household for its personal use, then it's a consumer good. The same car bought by a firm for production purpose, then it becomes a capital good. So it depends on the use again. If it is used for self-satisfaction, self-use, consumer good. If it is used for production purpose, then it's a capital or investment good. चलो अब हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में जो फर्क है उसे हम देखते हैं पॉइंट वाइज. लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पॉइंट वाइज in nutshell. This one I have already said. Consumption goods or consumer goods satisfy human wants directly. आदमी का जो अभाव है, जो नीड है, उसे डायरेक्टली पूरा करता है कंज्यूमर गुड्स, जबकि इन्वेस्टमेंट गुड्स पुनः उत्पादन के काम में आएगा और उसके बाद जो सामान तैयार होके निकलेगी वो कंज्यूमर्स के काम आएगा. सो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट गुड्स कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं. कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स एंड कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स आर यूज्ड बाय द फर्म्स और प्रोड्यूसर्स. द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड capital expenditure or investment expenditure. So this is another difference. Since consumer goods are consumed by consumers or households, they raise the well-being or satisfaction level of the consumers. So consumer goods raise the level of satisfaction of the consumers or households. Whereas investment goods or capital goods are used for future production, further production, and thereby they expand the productive capacity or production of the economy, and in the long run they raise the GDP of the economy. So this is another difference. Consumer goods raise the level of satisfaction, capital goods raise the level of productive capacity of the economy. If we look at the example of these two types of goods, car used by a household is an example of consumer good. Car used by a firm is an example of capital good. एक स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. जितने भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं. थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन आप थोड़ी सी बारीकी से देखेंगे तो ये कंफ्यूजन हट जाएगा. पहली बात है कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है. टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. कैपिटल गुड्स बाय नाउ वी नो द मीनिंग.
the goods used by firms which help in future production like building machinery etc. प्रोड्यूसर गुड्स की मीनिंग समझने के लिए हमें इस वर्ड पर ध्यान देना है, प्रोड्यूसर गुड्स. सो गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स. सो ए प्रोड्यूसर विल यूज building machinery which are capital goods and also raw materials and intermediate goods for producing the commodity. So we can say capital goods are always producer goods. But we can say the second line, producer goods, all producer goods are not capital goods because producer goods also have raw materials and intermediate goods. These goods are not capital goods. जैसे अगर क्लासरूम में सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, if we only have students in the classroom, both boys and girls, then we can say that all girls in the classroom are students. But we can't say all students in the classroom are girls, क्योंकि क्लासरूम में लड़के भी हैं. तो क्लासरूम की हर लड़कियां स्टूडेंट्स हैं ये तो बोल सकते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारी लड़कियां हैं ये हम नहीं बोल सकते. यही बात यहाँ पे हो रही है. I would like to conclude my lecture by saying this. Concepts are key for long-term success. Even if you look at short-term success of securing good marks in the forthcoming exam, you can never cross 80-85 without having the understanding of the concepts. अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, when did India get independence? 1947. No need to understand anything. ये फैक्ट है तो आप लिख जाएंगे. लेकिन जैसे ही हायर लेवल का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नॉलेज को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, इवालुएट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. Now I have explained this one, or teachers in the classroom explain, so you can handle that question. But imagine something of that sort comes in the exam, be it board exam, university exam or competitive exam, which you haven't heard before. You can do nothing if you don't have the concepts. So it's very, very fundamental. Even if you want to score well, there will be 15-20 marks questions in the exam which test your analysis and ability to apply the knowledge acquired through the analysis. So my advice, please build your concepts. You will enjoy it only if you know the concepts. Take my words.